شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیا سال۔ مسیحی نیا سال کیوں مناتے ہیں؟ گو کہ یہ ٹھیک وہی دن نہیں ہے، یہ وہی تاریخ نہیں ہے، لیکن جو مقرر کیا گیا یا ایک ادبی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، غلط العام، جو عام ہو چکا ہے، اب وہ اس طرح سے وقت کے گھوڑے پر رائج ہو گیا کہ نہ ماننا چاہیں بھی تو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن جو بائبل ہے وہ ہمیں تاریخوں پر یا دنوں پر پابند نہیں کرتی، بائبل ہمیں حقیقت پر پابند کرتی ہے، کیونکہ دنوں اور وقتوں کو اور تاریخوں کو ماننا اور ان کا پابند کرنا یہ فقی، فریسی اور صدوقیوں کا طریقہ تھا۔ مسیح نے دنوں کو پابند نہیں کیا، نہ دنوں کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ لوگوں نے بارہا یسوع کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کیا کہ تو سبت کے دن ایسا کیوں کرتا ہے، تو اس دن کیوں ایسا کرتا ہے، یہ دن اس لیے نہیں ہے، یہ حد اس لیے نہیں ہے۔ تو مسیح خداوند نے بڑے معقول ان کو جواب دیے۔ میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ صرف 20 منٹ کا یہ ایک کلپ ہوتا ہے جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں، آپ کو ہنٹس دیے جائیں، آپ اس کی ڈیٹیل میں، اس کی گہرائی میں خود جائیں، تاکہ آپ کو مطالعہ کی عادت بن جائے۔ آج میری پاکستان میں کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی کہ ہم نیا سال کیوں مناتے ہیں اور مسلمان اس پر کیوں اعتراض کرتے ہیں، اور سکھ کیوں اعتراض کرتے ہیں، ہندو کیوں اعتراض کرتے ہیں، یہودی کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض 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 اعتراض، لیکن پھر بھی کرسچن لوگ اس کو مناتے ہیں۔ یورپین لوگ، ابھی آپ شاید آواز سن رہے ہوں، ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، اور باہر آتش بازی ہو رہی ہے، خوب آتش بازی ہے، کیونکہ 3 سال تو کرونا کھا گیا، لوگوں پر موت کا خوف تھا، دباؤ تھا، حکومت کا خوف تھا، پولوشن کا ایک دباؤ تھا، بہت ساری ایسی باتیں تھی جس کے سبب سے خوشی نہیں منائی گئی۔ خوف، دہشت، ڈر۔ ابھی جب میں ریکارڈنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا تو خبر آ گئی کہ 2023 میں بہت بڑی تبدیلی اس دنیا میں آنے والی ہے، یہودیوں کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ تبدیلیاں انسانی ہیں، لیکن خدا کی طرف سے بھی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے ریپچر ہو جائے، ہو سکتا ہے مقدسین کو مار دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مقدسین غائب ہو جائے، اٹھا لیے جائیں، کیونکہ اب ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے، اب وقت پورا ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا، ابھی میرا وقت نہیں آیا، لیکن جب وقت آ گیا تو شاگردوں کو کہا اب وقت پورا ہو چکا، اٹھو یروشلم کو چلے۔
वक्त को जानना, वक्त की मियाद को समझना, वक्त के घोड़े को कंट्रोल करना, ये हर एक का काम नहीं। और जिस किसी ने वक्त के घोड़े की लगाम अपने हाथ में रख ली है, उसने हमेशा फतह किया है। उसने मुल्कों को फतह किया, उसने अपनी जिंदगी को फतह किया, उसने हालात को फतह किया, उसने गरीबी को फतह किया। इसलिए हम जो नया साल मनाते हैं, इसमें नए अज़्म है, नई सोच है, नए गोल हैं, नई हदें हैं, नए प्रोग्राम हैं, नए पैनल हैं। अगर ये नहीं है तो कोई नया नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, उसका 2 बाब, तो वहां पर एक नया बाब खुल रहा है। उसकी 21वीं आयत जब आप शुरू करें तो आपको तरतीबवार 7 चीजें नजर आएंगी। पहला ये कि यस्सु का खतना किया गया, क्योंकि यहूदियों की यह रवायत थी कि जब लड़का माना जाता था तो फिर उसकी तस्दीक पर बाकायदा उसका नाम रखा जाता था, उसके नाम की अनाउंसमेंट की जाती थी, और उसकी अनाउंसमेंट में इस बात को सबके सामने रखा जाता था कि जी अब उसका नाम ये होगा। तो यस्सु का नाम रखा गया खतने के टाइम पे, उसको यस्सु गर्दाना गया, पकारा गया। खतना जो हुआ वो इब्राहिम की नस्ल होने की मोहर की गई, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो नर है इब्राहिम की नस्ल में, उसका खतना होना जरूरी है, जिसकी तस्दीक मूसा के बेटे के तलक से हुई कि उसको कहा गया कि इसका खतना होना जरूरी है। खुदा ने कहा था कि वरना ये मर जाएगा, और मूसा को भी खतना करवाना पड़ा, और अब उसने अपने बेटे का भी खतना किया, क्योंकि ये जो खतना है ये इब्राहिम की नस्ल की मोहर है, और ये मसीह पर ये मोहर हो गई कि वो नस्ल इब्राहिमी है। फिर उसका नाम यस्सु रखा, जो ये तस्दीक हो गई कि यस्सु जो है वो नजात दहिंदा है। यशुआ उसका नाम है, यस्सु उसका नाम है, जिसका मतलब है नजात देने वाला। और तीसरी बात कि जो शरीयत है, मूसा की शरीयत, जिसका जिक्र अहबार की किताब उसका 12वां बाब उसकी 2 आयत से शुरू करें तो आप डिटेल से पढ़ते जाएं कि औलाद होने की एक शरीयत यस्सु पर पूरी हुई, और औलाद होने की शरीयत को यस्सु की जिंदगी में पूरा होता हम देखते हैं। फिर हैकल में शमौन एक बुजुर्ग था जिसको रूहुल कुद्दस ने रहनुमाई दी, और वो रहनुमाई ये थी कि जब तक तू नजात को नहीं देखेगा जो खुदा की नजात है, तेरी मौत नहीं होगी। तो रूहुल कुद्दस ने शमौन पर जाहिर कर दिया, और उसने अलानिया तौर पर कहा कि अब तू अपने बंदे को रुखसत कर दे, क्योंकि अब मेरी आंखों ने खुदा की नजात देख ली है, खुदा का यस्सु देख लिया है। खुदा की नजात का मतलब है जो या है, जो इसका मतलब है खुदा, और नजात जो है वो शुआ है, या शुआ, या यहोवा शुआ, छुड़ाने वाला, खुदा छुड़ाने वाला। मेरी आंखों ने खुदा छुड़ाने वाले को देख लिया है। खुदा आ चुका है कि अपने लोगों को छुड़ाए।
और छठी बात, इस्राएल का लीडर देखा गया है। वो लीडर है। आप इन दोनों हवालों को, दोनों रेफरेंस को डिटेल के साथ एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, जो मतालिया का तरीका है, जो मतालिया का असूल है, तो आपको पता चलेगा कि यीशु इस्राएल का लीडर वजाहत के तौर पर दिखाया गया है। और 7वां पॉइंट जो है वो है मरियम की मौत की पेशगोई। शमौन ने की कि तेरी भी जान छेदी जाएगी, तुझे भी कत्ल किया जाएगा। जो हुआ कि मां मरियम को, यानी कि यीशु की मां को तलवार से कत्ल किया गया। मेरे अजीजों, ये एक रवायती दिन नहीं है, ये 7 बड़े आला, उर्फा, गहरे भेद का ऐलान है। ये नया साल, ये नया साल है शमौन के लिए कि उसकी आंखों ने निजात देख ली। ये नया साल है कि एक निजात दहिंदा जो अपनी जात में खुदा है, फिर भी वो सारे अवामल को पूरा कर रहा है। इब्राहिम की नस्ल होने की तस्दीक हो रही है। मूसा की शरीयत बाकायदगी से पूरी की जा रही है, कुर्बानियां दी जा रही हैं, रूहुल कुदस की रहनुमाई ली जा रही है। यह कैसा निजात दहिंदा है जिसकी पैदाइश पर पूरी दुनिया खुशी मनाती है, आतिशबाजी होती है। और ये जो पटाखे हैं, ये जो आतिशबाजी हो रही है, मैं जबरदस्ती ऊंची आवाज से बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आतिशबाजी की डिस्टर्बेंस है, लेकिन मुझे आज के दिन ही इसे रिकॉर्ड करना है, बा मौका रिकॉर्ड करना है, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हम कोई शराब पीने वाले, नशा करने वाले गिरोह के लोग नहीं हैं, जो मुसलमान कहते हैं कि आज ये क्रिश्चियनों का दिन है कि ये शराब पिएंगे और शोरगुल करेंगे और झगड़े करेंगे और धूम मचाएंगे। लेकिन ये धूम मचाने की बात जब तक हमें समझ ना आए तो किस बात की धूम, जब तक समझ ना आए किस बात के पटाखे, जब तक समझ ना आए किस बात की आतिशबाजी। ये आतिशबाजी जो थी ये मकाबियों ने भी की। जब वो कामयाब हो गए तो उन्होंने सरू के दरख्तों की टहनियों को काटा और उनको आग लगा के पहाड़ों पर दिखाया कि हम फातेह हैं। जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त भी लोगों ने दरख्तों की डालियां काटी और लहराई और बताया कि हम फातेह हैं, हमारा बादशाह आ रहा है। यह तरीका था यहूदियों का, जैसे यूनानियों का तरीका था कि जब वो कोई जीतता था तो दरख्तों की टहनियां काट के वो एक सेरा बांधते थे, सेरा बनाते थे, एक ताज बनाते थे और वो सर पर डाल देते थे। अब कई लोगों ने इसको खींच के किसी तरफ ले गए हैं, कोई किस तरफ ले गया है, और जो हकीकी बात है उसको दबाते जा रहे हैं। हमें इस बात का ऐलान करना है कि इब्राहिम का वो वादा जो खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू बाहर निकल अपने तंबू से, अपने टेंट से, अपने खेमे से बाहर निकल और आसमान की तरफ देख, क्योंकि इब्राहिम ने बड़ा एक गिला किया खुदा के साथ कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तू मुझे क्या देगा। तो खुदा ने कहा बाहर निकल और सितारों को देख, तेरी औलाद ऐसे होगी, सितारों की मानद नहीं,
तू सितारों को देख, यानी कि उन सितारों में, अजरामे फलक में, उसको गौर से देख। उन सितारों में कोई विरगो है, उन सितारों में कोई लियो है। मैं अब सितारों के नाम नहीं आपको ये इल्मे नजूम नहीं बताना चाहता, लेकिन सिर्फ एक स्केच देना चाहता हूं कि इब्राहिम ने जब आसमान पर देखा तो विरगो है, यानी कि वर्जन है। तेरी नस्ल में एक कंवारी हामला होगी, एक कंवारी होगी। तेरी नस्ल में एक शेर होगा, लियू होगा, यहूदा का बब्बर। तेरी नस्ल में ऐसा होगा जो मछलियां देगा लोगों को खाने के लिए। तेरी नस्ल में ऐसा होगा जो फातेह होगा, जिसके हाथ में तीर कमान होगी, फतह करने वाला होगा। तेरी नस्ल में एक अकरब होगा, बिच्छू, मौत। तेरी नस्ल में सांप को कुचलने वाला होगा। ये सारी तस्वीरें, ये फिल्म, ये अक्सबंदी इब्राहिम देख रहा था, और फिर उसने शुक्रगुजारी की। और जब शुक्रगुजारी की तो वक्त आने पर यह सारा 1 बाय 1 पूरा होता हुआ देखते हैं। इसलिए ये नया साल, नया बाब, नई धूम, नई आतिशबाजी, नया शोर, ये मजाक नहीं है। हम दिनों को मानने वाले नहीं हैं, हम वाकया को मानने वाले हैं। हम वाकये की खुशी मनाते हैं। कुछ पादरियों ने आजकल ये बड़ा वो पैगन्स का जिक्र करते हैं, ये तो पैगन त्योहार है, ये तो भाई हम नहीं जानते कौन पैगन्स है, हम नहीं जानते कि कौन है। अगर किसी की मां बुरी है तो हम अपनी मां को मां कहना छोड़ दें? अगर किसी का बाप बुरा है तो हम अपने बाप की इज्जत छोड़ दें? अगर एक शख्स की औलाद बदकिरदार है तो हम बच्चे पैदा करना छोड़ दें? अगर किसी को एक को खाना खाने से एलर्जी होगी तो दूसरे लोग खाना छोड़ दें? ये तो कितनी मोमल बातें हैं, कितनी बेमकसद बातें हैं। हम दिनों के मानने वाले नहीं हैं, हम वाक़े को मानने वाले हैं, हम यादों को मानने वाले हैं, हम ऐलान करने वाले हैं, हम धूम मचाने वाले हैं। इसीलिए साल के शुरू में ही इसका ऐलान करते हैं कि हम मसीह को मानने वाले हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं, हम इब्राहिम की नस्ल को मानने वाले हैं, हम रूहुल कुदस को मानने वाले हैं, हम शरीयत को मानने वाले हैं, हम पेशन गोइयों को मानने वाले हैं। क्योंकि ये 7, 8, 9 पॉइंट हैं जो लूका में और अहबार में मिलते हैं। इसका मुतालिया करें शख्सी तौर पर। अहबार 12वां बाब, पूरा बाब इसकी स्टडी करें। लूका 2 बाब 21वीं आयत से खूब इसका मुतालिया करें, क्योंकि खुदा का कलाम रोशनी है। जब यीशु दुनिया में आने वाला था तो भी धूम मची, आसमान पर फरिश्ते धूम मचा रहे हैं। और जब उसका नाम यीशु रखा गया तो यहूदियों में जब नाम रखा जाता था तो पूरी तौर पर ज़ियाफत की जाती थी कि हमारा बेटा वाकई बेटा है। वो 8 दिन तक देखते थे कि ये बच्चा अनफिट तो नहीं है, ये लड़का वाकई लड़का है। तो 8 दिन के बाद उसके 8वें दिन खतने किए जाते थे और फिर खाना किया जाता था, कुर्बानियां दी जाती थी, शोर मचाया जाता था, ढोल ढमक्का होता था। और यही जो आज धूम मची है, ये उसी बात की तस्दीक है कि यीशु एक मर्द पैदा हुआ था, वो एक लीडर था, वो निजात दहिंदा था, वो इब्राहिम की नस्ल का था, वो इब्राहिम का एक पूरा सबूत था जो खुदा ने वादे किए थे इब्राहिम के साथ। खुदावंद आपको इस कलाम की समझ दे और बरकत दे और इसके ऐलान करने की